And then the day you actually realize that okay, I am getting to live my dream finally. So emotions काफी high होते हैं. In this podcast, we have a special guest, Anjali Rathi, winner of Mrs. Vogue Star India 2024. She has also served in Indian Air Force as wing commander. So unlike a classical runway, आपको कुछ भी emergency है, the first platform to get launched would be your helicopters. But there were places where some wounded soldiers had to be brought back, and वो वाली situation, trust me, it is much more than what we imagine it to be. So every day is a new day depending on कि आज क्या situation है, आज क्या करना है, आज का क्या mission है. Will it be a routine flying day? Or it will be suddenly a call aata and you know there is some mission that you need to get launched for. My personal experience in Air Force, I've never really felt that kind of, कि कुछ मुझे opportunities कम मिली. But yeah, behind the scenes, थोड़ा self doubt था, थोड़ा सा बीच में there were moments, but I kept telling myself, I'm here to experience this. I will give it my best, I'll give it my heart and soul. But this is not something which is going to be like, कि oh life में क्यों किया जब नहीं जीतना था. It's a beautiful experience. I personally participated. लगता था कि it's all about just wearing a pretty dress and standing on stage. Not at all. There is a whole lot of grooming that goes, and groomings in terms of everything, starting from your table manners to your etiquettes to the way you greet somebody to the way you present yourself, how you introduce yourself, how do you walk. तो अगर आप देखें तो आपकी एक पूरी पर्सनैलिटी को ओवरऑल एक ग्रूमिंग मिल रही है, even when you're participating in a pageant. Personally, if you ask me, I can never imagine myself dressing up like that. That is not my style statement. I dress up in a certain way, but then that is her way of life. That is the way she likes to dress up. तो बोलते हैं ना, to each his own or her own. उनको वो पसंद है. She's doing it. I think good for her. I am nobody to comment. तो आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद आप सबका दिन अच्छा रहा होगा। तो सबसे पहले मैं अपने गेस्ट से चाहूंगा कि वो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। Hi Mohit, it's really nice to be on your podcast platform. मेरा नाम Wing Commander Anjali Rathi है. I'm a short service commissioned retired officer from the Indian Air Force. मैंने Academy 2008 में join की थी and I was commissioned into the flying branch in December of 2009. उसके बाद मैंने अपना total 14 years plus 1.5 year training. Total of 15 and a half years of my life I devoted to serving my country as a pilot. Thereafter, last year, December 23, I retired. And thereafter, I had thought of taking a break, a sabbatical, जिसमें कि मैं अपने professional courses थोड़ा और knowledge expand कर रही थी. And I was thinking I'll devote this time to kids. And thankfully, I got another opportunity wherein I won Vogue Star Mrs. India in April this year. So that is about me. तो बिफोर डेल्विंग इनटू द इन डेप्थ डिस्कशन, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ, आई वांट टू नो अबाउट योर फर्स्ट थॉट कि आपने कब सोचा कि यू वांट टू जॉइन एयर फोर्स और पहला ख्याल क्या था? Okay, so Mohit, the first thought was not primarily Air Force or flying. It was more of मैं थर्ड जनरेशन डिफेंस ऑफिसर हूँ, तो मेरी पूरी मदर फादर दोनों की साइड से ऑलमोस्ट एवरीबडी इज इन दी फोर्सेस. तो आई ग्रू अप इन अ फैमिली ऑफ यूनिफॉर्म्स. तो वो सर्विस बिफोर सेल्फ वाला जज्बा तो आई थिंक बहुत यंग एज में ही आ गया था. लाइक बचपन से आई यूज टू ड्रीम ऑफ बीइंग इन यूनिफॉर्म. देयर वाज नथिंग एल्स आई थॉट आई वुड बी डूइंग. हाँ, ये था कि यूनिफॉर्म में थोड़ा you could say there were little mixed thoughts at times because एक टाइम पे मुझे सिविल सर्विसेज भी ज्वाइन करने का मन था. फिर predominantly आर्मी बिकॉज मेरा पूरा बैकग्राउंड आर्मी का है. thereafter flying was a thing which was मेरी मम्मी का और मेरा ज़्यादातर मैं बोलूँगी मेरी मदर का ड्रीम था. So then when it came to flying, then it was Air Force. So more or less I was clear I will be wearing uniform. मुझे अपनी country को serve करना है. It will be Air Force and flying. ये मैंने somewhere I think about when I was in college, I got that clarity कि हाँ मुझे ये करना है. जैसे कि यू टोल्ड कि आप एक यू बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ पे आपके सभी मतलब डिफेंस में है एक तरीके से। तो मतलब इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि जो जिनकी फैमिली डिफेंस में होता है तो उनके बच्चे ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड होते हैं काफ़ी, और उनके अंदर एक अलग ही तरह की मोटिवेशन बचपन से ही होती है। तो आपके अंदर भी वो बचपन से था? मोहित, इससे पहले मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं आपको जो मेरे बच्चे हैं उनके बारे में बता देती हूँ. माई डॉटर इज जस्ट 4.5 years. माई सन इज गोइंग टू बी 7. The other day somebody was talking to me, कुछ there was some work commitment and I said after 8 o'clock because तब तक I'll be free, बच्चे सो जाएंगे.
So this person, this gentleman was very surprised. What? 8 o'clock so jayenge? I said, what are you talking? 7 o'clock, after their bath, their dinner. 8 o'clock is when I've read them a story and they're well tucked in their beds. तो अब आप सोचो आज के जनरेशन में अगर मेरे बच्चे अभी से ये रूटीन में हैं, इंक्लूडिंग माई 4.5 year old डॉटर, तो मेरा टाइम तो देन गोज गुड 20 years 25 years बैक. तो हाँ, वो डिसिप्लिन ऑफ वेकिंग अप अर्ली, गोइंग फॉर रन्स इन द मॉर्निंग, बीइंग फिजिकली एक्टिव, स्लीपिंग ऑन टाइम, ये सारी चीज़ें यस बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स बचपन से थी. ओके, तो हाउ मच डू यू बिलीव इन स्पिरिचुअल? आप मतलब स्पिरिचुअलिटी में कितना विश्वास करते हो, गॉड्स में और इन सब चीज़ों में कितना आपका भरोसा है? See, I'll put it very simply. I am not a person who has a lot of ideologies around it. कि ये जैसे होता है ना डेली के ये प्रोसीजर वो प्रोसीजर. I'm not against it. I very much feel जिसको जैसा convenient लगे. But I am a very firm believer in God. But my way is believing and मेकिंग श्योर दैट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, एनीथिंग सिंफुल लाइक यू से. एक अपने मन में बिलीव रखना, मैं ये नहीं बोलूँगी मैं मानती नहीं हूँ, बट मेरे बहुत ज़्यादा वो एक होता है ना एक वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग सबके अलग होते हैं. मैं बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में नहीं हूँ. बट येस, व्हेन देयर आर मंडेज आई डू एक्सपेक्ट कभी कभी कि बच्चे साथ में जाएं, हम टेम्पल विजिट करके आएँ. छोटी चीज़ें होती हैं नवरात्रों में, अवॉइड करा नॉन वेज वगैरह, या काफ़ी सारी चीज़ें जो शायद मम्मी फॉलो करते थे हम नहीं. सो व्हेन शी वुड टेल अस, रिमाइंड अस कि अभी ये टाइम चल रहा है, थोड़ा टाइम ये नॉन-वेज नहीं, वो नहीं. सो आई नेवर आर्ग्यूड कि क्यों, क्या लॉजिक है. मुझे ऐसा लगता है ठीक है, एवरीबॉडी हैज़ अ राइट टू हैव देयर बिलीफ. एंड आई एंडेड अप बीइंग लाइक ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अगर कुछ दिन नहीं ये चीज़ करी या कुछ फॉलो कर लिया. सो आई थिंक आई डू बिलीव इन अ डिवाइन एनर्जी, क्योंकि मुझे जब भी ऑब्स्टिकल्स या डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, आँखें बंद करके, अब नाम बहुत होते हैं बट हम एक पावर जिसको याद तो करते हैं मन में, एंड वी सीक दैट एनर्जी टू हेल्प अस ओवरकम. सो येस, आई फील आई एम कनेक्टेड टू अ डिवाइन एनर्जी. बहुत ज़्यादा रिचुअल्स मैं नहीं करती हूँ ऑन द एक्सटर्नल. तो नाउ आई वांट टू नो अबाउट योर द ट्रेनिंग प्रोसेस, कि जब आप एयर फोर्स में थे तो व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग यू हैव टू गो थ्रू एवरी डे? सो पहले तो वो है, बिफोर आई गिव यू वेरी ऑनेस्ट वर्जन हाउ इट इज. आई एम नॉट गोइंग टू से जस्ट कि लोग एनकरेज हो कि आ जाओ बहुत आराम, नहीं. वी हैव टू फर्स्टली अंडरस्टैंड कि अनलाइक एनी अदर जॉब, ये जो ट्रेनिंग अकेडमी है वो आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही है. इट इज़ डेफिनेटली नॉट प्रिपेयरिंग यू टू डू अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ जॉब. इट इज़ प्रिपेयरिंग यू फॉर एन एंटायरली डिफरेंट लाइफ, जहाँ यू आर पुटिंग योर लाइफ एट स्टेक टू डिफेंड योर कंट्री. अगर आप सोच के देखें, वो एक बहुत ही अलग फील्ड हो जाता है. तो उसके लिए आप जितना मर्जी किसी को ट्रेन करें, मुझे लगता है वो कम ही होता है. बिकॉज नो बडी कैन एक्चुअली ट्रेन यू टू गो एंड बी रेडी टू टेक अ बुलेट. तो वो एक अलग लेवल का आपको उसके लिए मेंटल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, ये सब चाहिए. सो नीडलेस टू से द डे टू डे फिजिकल स्ट्रेंथनिंग डेफिनेटली इज देयर. दैट डिसिप्लिन विच इज इंट्रोड्यूस्ड, जो बहुत सारे लोग नॉन डिफेंस फैमिली से भी आते हैं, वेर इट्स ओके टू स्लीप लेट, टू नॉट बी एक्सरसाइजिंग, वो बहुत ज़रूरी होता है सबको एक लेवल पे डिसिप्लिन करना. एंड मोर देन एनीथिंग एल्स आई थिंक योर मेंटल ट्रेनिंग जो आपको वहाँ करते हैं, wherein डे टू डे बेसिस पे दे क्रिएट अ सिचुएशन जिसमें आप प्रेशराइज्ड फील करेंगे. बट दैट इज हाउ यू आर गेटिंग कंडीशनड टू हैंडल प्रेशर इन फ्यूचर. कि आपको कोई भी जिंदगी में मुश्किल भी सिचुएशन आए, आप ब्रेक डाउन नहीं होते हैं. सो येस, इट इज़ डिफिकल्ट. बहुत रिग्रेस आपका रूटीन होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी अर्ली एज 4 AM इन द मॉर्निंग. एंड बट येस, नाइट टाइम आपको एक सेट होता है, लाइट्स आउट बोलते हैं जिसे, वेर यू हैव टू बी टेकिंग योर adequate rest to be prepared for the next day. Also, I would mention यहाँ पे there is a mix of a lot of things in this. Like हमें लगता है ट्रेनिंग में सिर्फ आपका फिजिकल एस्पेक्ट्स बहुत होते हैं, लाइक रनिंग एंड गेम्स एंड ऑल दोज थिंग्स. बट नो, फॉर मी बीइंग इन एविएशन एंड इवन अदरवाइज फॉर ऑल दी पीपल अंडरगोइंग ट्रेनिंग, आपका एकेडमिक्स में भी एक बहुत ज़्यादा फोकस रहता है एट द सेम टाइम. So it's a mix of, getting your body, mind, and heart, everything conditioned to sustain during pressure and not give in. ओके, तो जैसे ये तो आपने एक जनरल आंसर दे दिया, बट अगर आपको जब आप हेलीकॉप्टर्स, आप बिकॉज यू आर इन फील्ड ऑफ एविएशन, Correct. तो उसको उड़ाने की भी एक तैयारी होती है अलग हाँ से. जी, हाँ तो मैं जी. चाहता हूँ उसके बारे में थोड़ा Okay. उसके बारे में थोड़ा सा. करेक्ट, करेक्ट. सो आई गेट इनटू स्पेसिफिक्स. होता क्या है, जैसे मोहित, अभी माय ट्रेनिंग, आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली मेरी फॉर द एविएशन ब्रांच. हमारी 1.5 year की ट्रेनिंग होती है.
इन ग्राउंड ड्यूटीज यू हैव 1 ईयर ट्रेनिंग। हमारी जो ये 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है, वो स्पेसिफिकली इसी रीजन से 1.5 साल की है दैट द फर्स्ट 1 ईयर दैट वी हैव, वो हमारी कॉमन होती है ग्राउंड ड्यूटी वाले ऑफिसर्स के साथ। इट्स प्रीटी मच अ कॉमन करिकुलम, अपार्ट फ्रॉम कि हमारे एकेडमिक्स सेकेंड टर्म में आके थोड़े अलग हो जाते हैं, मोर ऑफ फ्लाइंग रिलेटेड। आफ्टर दैट 1 ईयर जो हमारे साथ आए होते हैं बाकी ट्रेनीज, दे गेट कमीशनड। वी गेट कमीशन 6 months लेटर, बिकॉज वो लास्ट के 6 months वी मूव टू आर इंडिविजुअल specific training establishments. Like you're aware, Air Force में भी for flying branch, your transport, helicopters and fighters, एक जो trifurcation process होता है, once that is decided at the end of second term, हम अपने अपने ट्रेनिंग फ्लाइंग ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में जाते हैं। लाइक फॉर मी इट वाज हेलीकॉप्टर्स, सो आई वेंट टू हाकिमपेट, हमारा वहाँ पे हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल है। फिर वो 6 months जो था, आई वॉज ओनली विद माई कोर्समेट्स जो मेरे साथ हेलीकॉप्टर में दे वर अबाउट टू गेट कमीशन, एंड हमें वो 6 महीना एक्सक्लूसिवली फ्लाइंग ट्रेनिंग पे फोकस किया गया, एकेडमिक्स पे फोकस किया गया। ऑफ कोर्स देयर वर क्वाइट अ लॉट ऑफ इट इन द फिजिकल एस्पेक्ट वाज आल्सो देयर, बट प्राइमरीली वो 6 महीने में हमें फ्लाइंग, स्पेसिफिक हेलीकॉप्टर फ्लाइंग के बारे में आई वुड से ज़्यादा सिखाया गया। लाइक एवरी डे वी वर गिवन क्लासेस, वी वर टॉट देयर आफ्टर। सबके इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, लाइक कोई भी 2 या 3 ट्रेनीज का एक इंस्ट्रक्टर होता है। सो एवरी इंस्ट्रक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ट्रेनीज। वो आपको एक एक सॉटी, पहले आपको एक सॉटी वो लेके जाते हैं जस्ट टू गिव यू दैट फेमिलराइजेशन। इवन बिफोर वी स्टार्ट फ्लाइंग, इनफैक्ट एक स्पेसिफिक टाइम डिवोट किया जाता है जहां हम सिर्फ उस कॉकपिट के साथ फेमिलराइज होते हैं। क्योंकि लाइक यू वुड हैव सीन द कॉकपिट लुक्स लाइक, वो बिल्कुल आपको लगता है आप किसी वो मल्टी डायमेंशनल उसमें गेमिंग जोन में आ गए हैं। सो वो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पहले हर एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना, समझना क्या रोल है। फिर एक चेकलिस्ट होती है हर एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिक, जिसमें पूरे आपके चेक्स, प्रोसीजर्स, इमरजेंसी हैंडलिंग की, कल को इस जहाज में अगर ये इमरजेंसी आई मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा इसको, एंड हाउ एम आई गोइंग टू टैकल इट। अगर दो इमरजेंसीज एक साथ आ गई, दिस इज द कंडीशन हाउ आई विल हैंडल। सो वो 6 months एक्सक्लूसिवली जो होता है, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द न्यूएंसेस ऑफ आर फ्लाइंग। उससे पहले वाला हमारा 1 साल जो होता है, इट इज जनरल ट्रेनिंग, एंड अ पार्ट ऑफ इट द 6 months आर फिक्स्ड विंग ट्रेनिंग, जो हम सब एक फिक्स्ड विंग पे करते हैं। लेटर 6 months इज देन ट्राइफिकेशन के बाद जो हम अपने अपने स्पेसिफिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट पे ट्रेनिंग करते हैं। ओके, तो हाउ मेनी आवर्स ऑफ फ्लाइंग जो मतलब ड्यूरिंग ट्रेनिंग एक रिक्वायर्ड होता है ना कि इतना आपको नंबर ऑफ आवर्स आपको कंप्लीट करना है, वो कितने होते हैं? ओके, सो नाउ सी, स्टार्टिंग फ्रॉम योर बेसिक स्टेज, जैसे आप जब अपने स्टेज 2 में एएफए में फिक्स्ड विंग में करते हैं, सो मेरे टाइम उस टाइम देयर वर क्लोज टू 70 सॉर्टीज टोटल, बिकॉज देयर आर आल्सो सम फ्लेक्स सॉर्टीज गिवन, दैट इज इन टर्म्स ऑफ अगर फॉर सम रीजन somebody हैज इन बिटवीन ट्रेनिंग फॉलन सिक, या फॉर सम स्पेसिफिक रीजन आप कोई एक हमारा जैसे फेज में चलता है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जैसे अब मैं नेविगेशन फेज सीख रही हूँ, अगर एक 3 से 4 मुझे सॉटी सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्टर ने नेविगेशन रिलेटेड सॉटीज की, देन आई हैव अ टेस्ट सॉटी ऑफ इट। इफ फॉर सम रीजन आई हैड अ गैप ऑफ 2-3 days, क्योंकि ह्यूमन फैक्टर्स और कभी कभी टेक्निकल रीजन, एयरक्राफ्ट अनसर्विसेबिलिटी, बहुत रीजन आ जाते हैं विच आर बियॉन्ड आर कंट्रोल। सो टू मेकअप फॉर दैट, बिकॉज वो आप इतने व्हाट डू यू से वनरेबल स्टेज में हैं ऑफ लर्निंग, आपको एक दिन का भी गैप अगर आ जाए उस स्टेज में लर्निंग में, इट कैन गेट यू, इट कैन टेक यू ऑन अ बैक फुट। So they would give you one odd extra sortie to again get your concepts back. Or for some reason, a trainee is not able to pass that phase, which happens a lot of times because the parameters are quite high over there. They keep that benchmark quite high. Suppose आप एक बारी में नहीं वो phase clear कर पाए, they will stop you then and there. Then they will give you probably 2 extra sorties. कि चलो 2 extra मिल रही हैं आपको, try and cope up in this stage and see and put in more effort. Somebody does it well and good, वो he will pass in the next, वो जो आपका टेस्ट सॉर्टी होता है। नाउ somebody is not able to do well even after those 2 sorties, then again individually उसका केस डिस्कस होता है, what is to be done. So there are, I guess, total of what I'm remembering now about 3 warnings which are there. इसमें भी warnings मिलती हैं जब आप नहीं क्लियर कर पाते हैं कोई फेज, and if it's close to 3 warnings, that's when a lot of trainees even go through the process of TRB, जिसमें बेसिकली आपका फ्लाइंग स्टॉप हो जाता है, एंड देन अ डिसीजन इज टेकन इन विच योर ब्रांच इज चेंज्ड, बिकॉज फ्लाइंग बेसिकली इज अ इट्स अ वेरी अनफॉरगिविंग प्रोफेशन। तो अगर एक आयोटा भी डाउट है कि एक ट्रेनी में भी शुरू में कोप अप कर पा रहा है,
बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू आर फीलिंग कि वो जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, द ट्रेनी इज नॉट एबल टू कोप अप। इट्स नॉट जस्ट कि वो बिकॉज द ट्रेनी इज नाउ सो पैशनेट या वो आ गया है, पास आउट तो करना ही है, योर ट्रेनिंग इज स्टॉप्ड, टीआरबी होता है, यू आर रीस्ट्रेन्ड। सो ऑन एन एवरेज क्लोज टू व्हाट आई रिमेंबर वेगली 70, बट ये थोड़ा फिगर आगे पीछे वेरी करेगा, विच डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस आई जस्ट एक्सप्लेन। I want to know about your emotional feelings. Frankly, Mohit, there is no word which I think is going to even come to my head to explain that feeling because it is beyond those expressions जो हम use करते हैं ना, very good, very excited, happy. मतलब वो एक बहुत ही अलग feeling थी। एक तो सबसे पहले तो वो जो emotion होता है where a dream you have lived all your life and then a dream जो आप बहुत टाइम तक आपको लगा कि ये थोड़ा unrealistic है, because back in 2008 flying ऐसे सिर्फ एक dream ही लगता था बहुत लोगों को। And then the day you actually realize that okay, I am getting to live my dream finally, so emotions काफी high होते हैं। and most important जो आप एक चीज feel करते हो is वो happiness, adrenaline rush, ये सब चीजें yes they come, but उसके साथ suddenly एक जो आपको एक बहुत ज्यादा एक responsibility वाली feeling आती है ना, that okay, the air force has literally spent so much of money on you to train you to take up this role, and you are actually in charge of taking up an aircraft which is worth so many crores, you are responsible for saving lives। सो ये एक जो फीलिंग होती है, आई थिंक ये जब तक आप फील नहीं करते हो वो इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। सो ऑल ऑफ अ सडन वो बोलते हैं ना, द शोल्डर्स एक्चुअली फील हैवी द डे यू टेक योर फर्स्ट फ्लाइट एंड यू फील ठीक है, आई एम गोइंग टू बी नाउ टेकिंग अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वेरी प्राउड, वेरी रिस्पॉन्सिबल, अपार्ट फ्रॉम द हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट आई थिंक। तो कैन यू टेल अस कि व्हेन वाज योर फर्स्ट सोलो हेलीकॉप्टर फ्लाइट, कि आपने कब किस साल में आप वो उस चीज़ को किया था, और उसका एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो? ओके, सो मोहित, लाइक आई सेड, हमारा जो पहला फर्स्ट टर्म वाला, जो फर्स्ट टर्म इज ऑल ट्रेनिंग, ग्राउंड ट्रेनिंग, जो सेकंड टर्म में हम फिक्स्ड विंग फ्लाइंग करते हैं। टेक्निकली तब मैंने HP-32 पे किया था, नाउ दैट इज नो मोर, इट्स डीकमीशन नाउ। दैट इज द एयरक्राफ्ट ऑन विच हम सब ने अपनी फिक्स्ड विंग ट्रेनिंग कंप्लीट की थी, कुछ 70 आवर्स। उसमें मेरा फर्स्ट सोलो, आई वुड से एक्चुअल सोलो, व्हेन आई टुक अप द एयरक्राफ्ट ऑल अलोन। But helicopters per se, you don't actually go solo in the trainer aircraft or the aircraft that I have flown because it's a twin cockpit setup. So you do go for solo sorties. That is, एक आप कोई भी face clear करके आप solo जाते हो. But technically, आप there is always a co-pilot sitting with you in that. So the actual solo was in my HPT-32, and बाप रे वो feeling was मतलब वो उसको सोच के भी आई डोंट नो, द इमोशंस रन सो हाई। एक बार ऊपर जैसे ही आप एयरबॉर्न होते हो तब तक बहुत प्रेशर आ रहा होता है कि कि चेक्स ना गड़बड़ हो जाए, बिकॉज एक वो फीलिंग आती है कि अभी इंस्ट्रक्टर नहीं है साथ में। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लेते हो, नॉलेज गेन कर लेते हो, प्रोफिशिएंसी ले लेते हो, व्हेन यू फ्लाइंग विद योर इंस्ट्रक्टर एक थोड़ा सा मन में एक वो सेटिस्फैक्शन या एक सेफ्टी फीचर जिसे बोलते हैं वो रहता है कि ठीक है, अगर कुछ नहीं भी ध्यान आया, गड़बड़ करी, तो द इंस्ट्रक्टर इज देयर टू पैट यू एंड से दिस इज रॉन्ग। बट दैट वाज लिटरली द फर्स्ट डे व्हेन यू न्यू दैट यू गोट टू गो डाउन विद द एयरक्राफ्ट अगर आपने एक इवन देयर इज एन आयोटा ऑफ मिस्टेक। सो येस, ऑन ग्राउंड अ लॉट ऑफ प्रेशर, जब तक आप टैक्सी कर रहे हो, चेक्स कर रहे हो, एयरबॉर्न हो रहे हो। एंड देन आई रिमेंबर द मोमेंट आई गॉट एयरबॉर्न एंड आई वाज इन सेक्टर, वो कुछ मिनट के लिए वो ऐसी फीलिंग आई दैट आई थिंक इट वाज एज गुड एज जो लिटरल सेंस में बोलते हैं फ्लाइंग इन योर ड्रीम्स। मतलब एक दो सेकंड लगे टू स्नैप माई सेल्फ बैक कि ओके, अब इसको लैंड भी कराना है इसके बाद, जो कि बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर है। बट yeah, I think the most beautiful feeling you can ever experience in your entire life is when you actually get solo for the first time. वो बहुत अलग ही फीलिंग होती है। पर्सपेक्टिव आपका, आप ऊपर से अकेले एक इतने ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट को लेके फ्लाई कर रहे हैं, एंड द एयरक्राफ्ट लिसनिंग टू यू, यू कैन टेक इट एनीवेयर, यू कैन मैनूवर इट द वे यू वांट। सो इट्स एन आर्ट इन इटसेल्फ, बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है। आई बिलीव इन अ प्रिंसिपल और मंत्रा दैट देर आर गुड डेज एंड देर आर बैड डेज। इफ अगर कुछ मेरे फेवर में नहीं होता, आई थॉट कि यार दिस इज अ बैड डे, ये एक दिन की बात थी, हो गया, ठीक है, तो दिस इज माई मंत्रा। तो व्हाट्स योर मंत्रा और फिलोसफी जिसे आप फॉलो करते हो ऑन रेगुलर बेसिस? सो मोहित, बहुत नेचुरल है।
everybody has bad days, and I will say बहुत it's a fake reply if somebody says I never get bogged down with, नहीं, आप थोड़ा सा demotivate, थोड़ा demoralize होते हो. I have had my share of setbacks, not one, a lot of them. At every stage in life आप हमेशा prepared नहीं होते हो situation के लिए. उस बट द ब्यूटी इज, जो मेरा आप जो मंत्रा मान पूछना चाह रहे हैं, इज for some time I allow myself to feel sad or rejected or oh my god, I maybe should have, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ कि शायद थोड़ा और कर लेते. बट आई नेवर गेट टू लेट दैट फेलियर डिसाइड माई फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस. दिस इज समथिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ. कुछ करने गए बाय चांस, इट डिड नॉट गो द वे आई वांटेड, और आई डिड नॉट क्लियर इट, और आई डिड नॉट मेक इट, आई कम, आई फील बैड थोड़ा सा, आई टेक माई टाइम, आई सल्क, आई ट्राई टू स्नैप आउट ऑफ इट. बट आई एम वेरी श्योर आई एम नॉट अ पर्सन हु विल से मैं अब ये करूंगी ही नहीं, या दिस इज नॉट मेंट फॉर मी. नो, आई एम अ पर्सन हु विल से कि देखा थोड़ा और पहले थोड़ी सी और मेहनत कर लेते तो ये दोबारा नहीं करना पड़ता. एंड देन नेक्स्ट टाइम आई एम श्योर कि वो एक जिद में आके आई डू इट टू सच एन एक्सटेंट कि कोई स्कोप ही ना रह जाए वो ना होने का. So if you lightly put it in a word, in a sentence, it's more like feel bad about the failures, sulk about it, share करो, थोड़ा सा दुख मना लो थोड़ी देर के लिए, but never let it stop you. Let it be a motivating factor to bounce back doubly strong. That is what I believe in. ओके, तो कैन यू टेल अस अबाउट योर मिशंस और ऑपरेशन जिनका आप हिस्सा रहे थे विदाउट रिवीलिंग एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन? Okay, so with missions on day-to-day basis, like there is routine flying that you do. Those are the training sorties that you call it, जो आप अपना regular profile follow करते हैं, which are like your part of your syllabus. And then there are missions which are quite a lot. Like helicopter, अगर मैं बोलूँ तो वो एक ubiquity आपके साथ एक element attach हो जाता है. Ubiquity in itself stands for anytime, anywhere. So unlike a classical runway, आपको कहीं कहीं पे किसी भी जगह कुछ भी इमरजेंसी है, द फर्स्ट प्लेटफॉर्म टू गेट लॉन्च्ड टू रेस्क्यू इन लिटरल सेंस, जो बोलते हैं ना रेस्क्यू प्लेटफॉर्म, वुड बी योर हेलीकॉप्टर फ्रॉम द नियरेस्ट बेस. आपको कहीं पे भी फ्रॉम अ हिल टॉप टू मे बी एनी वेयर क्लोज टू वेयर देर आर फ्लड्स, एक अभी आपने देखा होगा वेदर इट वाज साउथ में जो फ्लड्स थे या जो लैंडस्लाइड्स थी, यू वुड हैव सीन हेलीकॉप्टर्स पेड़ों के ऊपर टेबल टॉप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, हिल टॉप्स पे जहाँ पे स्लाइड्स हो रखी हैं, दे आर पुलिंग अप पीपल फ्रॉम लिटरली छोटे छोटी जगहों से. सो इस टाइप के आपके काफ़ी मिशंस होते रहते हैं. सम आर ह्यूमैनिटेरियन ऑल्सो, डिजास्टर रिलीफ भी होते हैं. देर आर इवन टाइम्स व्हेन इन द फॉरवर्ड एरियाज योर own soldiers, your own colleagues, that kind of rescue work has to be done, that they have to be brought from a place back, place A to place B. सो ये वाले आपके मिशंस रहते हैं. जैसे कुछ आई रिमेंबर ईस्ट में थे, इन द वेरी, आई कैन नॉट रिवील द नेम, but there were places where some wounded soldiers had to be brought back, and wo wali situation, trust me, it is much more than what we imagine it to be. Firstly, flying in those areas jo ki safe nahi hote hain, and secondly having your own fellow men in uniform who are, you can see them bleeding, that आपके वो आपके हाथ में है कि आप कितना इफेक्टिवली विदाउट वायलेटिंग और कॉम्प्रोमाइजिंग सेफ्टी आप उनको, यू कैन टेक देम टू हेल्प वेयर देयर लाइफ कैन बी सेव्ड. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आपको pressure में डालती है. But then again, we do those on a regular basis, especially in certain areas like East and all. And then there are also a lot of rescue work that we do for the, हमारी जो civilians के लिए भी बहुत होता है, जो कि आप दिन रात newspaper में पढ़ते ही हैं. Like I still remember a lady whom we had, एक बहुत far flung, in the east there was a village जहाँ से हमें उनको pick up करके लाना था. She had some cardiac issue, and she probably, doctors had said वो बहुत छोटी जगह थी कि शी हैज़ टू बी टेकन टू द सेंटर. उनको गुवाहाटी लाना था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था. उनका एक छोटे बच्चे को भी हमने साथ में बिठाया हुआ था. सो वो जो एक फ्लाइंग बैक वाज, मतलब आप उसको खुद ही इमेजिन करके देखिए. आपको पता है कि यू वांट टू रश, बट आपको ये भी पता है कि आप अपने रूल्स नहीं वायलेट कर सकते हैं. वहाँ एक छोटा बच्चा रो रहा है बैठ के, एंड आपके हाथ में, इनको आप बचा सकते हैं. सो ये वाले आपके आते रहते हैं काफ़ी मिशंस डिपेंडिंग ऑन द प्लेस दैट यू आर पोस्टेड एट. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ हेलीकॉप्टर्स इज ऑल्सो दैट इन द कॉम्बैट, जो हमारे कॉम्बैट मिशंस होते हैं. अगेन देर आर अ लॉट ऑफ मिशंस नाउ, जैसे कि मूवीज में आजकल आपको काफ़ी एनलाइटनमेंट मिल रही है. पीपल आर टेलिंग यू अबाउट द रोल्स जो बहुत हम सीक्रेसी में रखते थे. जैसे उरी में अगर आपने देखा हो, फॉरवर्ड एरियाज में हमारे ट्रूप्स ड्रॉप करना, दैट्स अ वेरी रेगुलर फीचर. And also, in combat missions in sensitive areas where you need stealth operations, जहाँ आप full flung, आप announce करके नहीं जाते हैं कि हम war पे आ रहे हैं. So yeah, your commandos, your special forces, आप
देयर इज लॉट ऑफ, आई थिंक वही मैं बोल रही हूँ, बहुत वेरिएशन है और बहुत चैलेंजिंग रोल्स हैं एंड बहुत सारे रोल्स हैं. सो एवरी डे इज अ न्यू डे डिपेंडिंग ऑन कि आज क्या सिचुएशन है, आज क्या करना है, आज का क्या मिशन है. विल इट बी अ रूटीन फ्लाइंग डे, और इट विल बी सडनली एक कॉल आता है एंड यू नो देयर इज सम मिशन दैट यू नीड टू गेट लॉन्च्ड फॉर. सो वो प्रोफाइल बहुत वेरी करती है. ओके, तो व्हाट आर द पॉसिबल फैक्टर्स फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव कि जो आपको लगता है कि यार दीज आर द फैक्टर्स जिनकी वजह से एक मिशन पूरा मिशन फेल हो सकता है मतलब. मोहित, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. मतलब आप एक हो तो बताओ. दिस इज अ प्लेटफॉर्म विच इज सो डायनामिक ना. आप कितने भी लाइक यू नो, हमारा जो एक रूटीन में हम जब एक सॉर्टी के लिए जाते हैं, अपनी तरफ से एक पायलट, नॉट जस्ट अ पायलट, द एंटायर क्रू, एंड आपकी जितनी भी सपोर्ट सर्विसेज होती हैं. आप ये देखिए, अगर कल एक मेरा मिशन है, आज का मेरा पूरा जितना भी टाइम है आफ्टर आई लैंड बैक फ्रॉम टुडे सॉर्टी, एंड नॉट जस्ट मी, बट जो आपका टेक्निकल क्रू है वो शाम से आपका जहाज पे लगा हुआ है एयरक्राफ्ट रेडी करने के लिए. आपकी जो सपोर्ट सर्विसेज हैं, आपके मेट हैं, आपके एटीसी है, वो आपके रूट्स प्लान कर रहे हैं. मेट वाले आपका कल का फोरकास्ट दे आर ट्राइंग टू प्लान इट फॉर यू. सो देर इज सो मेनी पीपल इन्वॉल्व इन द हाइंड साइड, जो हर एक मिशन के पहले इतनी मेहनत कर रहे हैं टू एंश्योर दैट नथिंग गोज रॉन्ग द नेक्स्ट डे. एयरक्राफ्ट पे कितने, आई थिंक देर आर मल्टीपल चेक्स विच आर डन एट डिफरेंट लेवल्स. आपके जो टेक्निकल मैन होते हैं, देन योर ईओ, योर आपके जो उसके बाद आपके सीनियर जो एसटीओज होते हैं, देन द पायलट हिमसेल्फ. देर आर मिनिमम 3 to 4 times यू गो अराउंड दैट एयरक्राफ्ट डूइंग एन इंस्पेक्शन की कुछ गलत ना हो. बट फिर भी जिसे बोलते हैं ना, है तो वो मशीन. आप कितना भी, क्योंकि कोई भी आप सोचो ना, पायलट वो जानते हुए कि इसमें ये अनसर्विसिबिलिटी आ सकती है, कौन इतना बेवकूफ होगा कि अपनी लाइफ देने के लिए जाएगा. बट देन स्टिल आप मेट से भी कितना मर्जी आप सब ब्रीफिंग ब्रीफिंग वो सब लेके जाते हैं, बट मौसम एक ऐसी चीज है, इट्स नॉट गोइंग टू होल्ड ट्रू कि आपके पेपर पे ये लिख दिया रिलायबिलिटी, ठीक है, वी हैव प्लेसेस जहाँ पे बहुत हाई रिलायबिलिटी कि ये ऐसा होल्ड करेगा. बट आपका वो 1% वेरिएशन का फैक्टर वो ह्यूमन फैक्टर के बाहर होता है. सो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस एनीवेयर फ्रॉम यू नो अ प्लेस. जैसे ईस्ट में हम इतना एक्सपीरियंस करते थे कि अभी प्लान ये था कि ओके ये वेदर होल्ड करेगा, इट्स नॉट गोइंग टू डिट्योरेट एनी फर्दर. बट मिडवे इनटू द रूट एंड यू रियलाइज सडनली वो पूरा ऊपर यू नो पैकअप हो गया है, ऑल ऑफ अ सडन क्लाउडिंग हो गई है, एंड नाउ यू नो यू हैव टू रिटर्न बैक. अब आप देख रहे हैं फ्यूल नहीं है. अब आप आगे जाएं, पीछे जाएं, या यहाँ लैंड करें जहाँ कोई लैंडिंग ग्राउंड ही नहीं है, कोई सपोर्ट सर्विस नहीं है. सो बहुत चीजें एक टाइम पे गड़बड़ आने को हो सकती हैं और होती भी हैं. That is why unfortunately we do have so many you know incidents which happen in spite of taking so much efforts कि ना कुछ खराब हो. आपका कब कौन सा इंस्ट्रूमेंट सडनली गिव वे कर दे, उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं. अभी ठीक है, ग्राउंड पे आपने टेस्ट किया, परफेक्ट, इट्स वर्किंग, वी वेंट, ऑल ऑफ अ सडन ड्यू टू सम फैक्टर इट वेंट यू नो अनसर्विसेबल. देन फ्यूल का एक लिमिटेशन, आपकी विंड्स क्या चल रही हैं, आपने प्लान इतनी देर में किया था ये रूट, बट ड्यू टू मे बी विंड्स ठीक नहीं चल रही हैं, या आपको डी टूर लेना पड़ा है, आपका फ्यूल ज्यादा कंज्यूम हो गया, नाउ यू फील ओके यू कांट मेक गुड अ सर्टेन रूट बिकॉज ये कंस्ट्रेन है. सो आई वुड अगेन से बहुत रीजंस हैं कि आप कितनी भी प्लानिंग करें, थिंग्स कैन गो रॉन्ग. एंड दैट इज द रीजन वो आपको इतना ज्यादा एग्जॉस्टिवली ट्रेन करते रहते हैं, इतना एक्स्ट्रा, जो आपको तब बहुत टायरिंग लगता है ट्रेनिंग डेज में, कि व्हेन यू आर अप देयर, इफ अ सिचुएशन इज नॉट वर्किंग इन योर फेवर, आप में वो एक्स्ट्रा यू नो एक बोलते हैं ना अवेयरनेस अहेड ऑफ द एयरक्राफ्ट वाला एक फैक्टर रहे कि आप स्प्लिट ऑफ अ सेकंड में एक लाइफ सेविंग और क्रिटिकल डिसीजन ले पाए, जो पायलट के लिए उस टाइम पे बेस्ट डिसीजन है टू सेफली रिकवर द प्लेन एज वेल एज द पैसेंजर्स. थ्रू आउट योर जर्नी आपने कितने लाइफ लेसन ऐसे सीखे हैं जिनको आज आप अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो. मोहित, ऐसे तो बहुत होंगे, बट इफ आई हैड टू पिक अप मे बी वन जो कि मुझे आई फील इज वेरी रेलिवेंट इन डे टू डेज एज, इज द कन्विक्शन टू यू नो स्पीक अप at the right time. Raise your voice, rather, I would say, at the right time if you're feeling something is not right. ये आप एग्री करेंगे, ये हमारे पर्सनल लाइफ में भी, वेदर इट इज आप कॉर्पोरेट का कल्चर आपको थोड़ा मुझसे बेटर पता होगा, यू फील योर बॉसेस आर नॉट बीइंग फेयर, द वर्किंग कल्चर इज नॉट करेक्ट, मोर ऑफन देन नॉट वी फील कि ठीक है वो हमसे सीनियर है, बोल रहे हैं, इट्स ओके, बट द राइट थिंग इज टू रेज योर वॉइस एंड से नो, दैट्स नॉट द वे इट्स टू बी डन, और आई डोंट फील दिस इज करेक्ट. ये मैंने कैसे रियलाइज किया एविएशन में, इसका क्या, आई वुड से हाउ आई लर्न इट थ्रू एविएशन इज,
जैसे ही हम अपनी उसमें जाते हैं, आफ्टर गेटिंग कमीशन्ड अपनी ट्रेनिंग के बाद, जब हम फर्स्ट यूनिट में पोस्टेड होते हैं, तो वहाँ पे भी फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम, क्लोज टू 6 मंथ्स, आप अगेन एक ट्रेनिंग प्रोफाइल वाला एक there's a syllabus that you're following before you actually start getting cleared and start doing solos or start doing the missions as a captain. तो उस टाइम पे जनरली वी गो विद वेरी सीनियर पायलट्स, या जिनको हम बोलते हैं सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर्स क्यों? क्योंकि वी आर वेरी वेरी जूनियर इन टर्म्स ऑफ आर एक्सपीरियंस, तो अब दो इनएक्सपीरियंस लोगों को एक साथ भेजोगे, इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी कॉम्बिनेशन। सो आई रिमेंबर दिस, I would say extremely soft spoken and extremely intelligent, senior of mine, who was known for keeping a very calm, composed, उनका बहुत handling बहुत mature होता था, whether it was flying related or on ground. I was flying this mission with him, एंड आई रिमेंबर हिम आस्किंग, उस दिन थोड़ा मौसम डाइसी हो रहा था, मतलब अभी तक ठीक था, बट ही हैड स्टार्टेड पिकिंग अप। अब यही होता है एक्सपीरियंस में जो डिफरेंस आता है, हमें लग रहा है कि नहीं नहीं एटीसी ने बोला है तो ठीक ही होगा, बट ही हैड स्टार्टेड नोटिसिंग दैट वेदर इज सडनली स्टार्टिंग टू डिट्योरेट। उन्होंने मुझसे 2 बार पूछा, और अंजलि कैसे लग रहा है, योर फाइंडिंग द वेदर ओके है? तो मैंने 2 बार देखा एंड आई सॉ ये तो ही इज कंटिन्यूइंग ऑन द सेम रूट। तो मुझे वो फेथ आया कि हाँ हाँ, फिर मैंने वो ठीक है सर, इट्स गुड, वील गो। आफ्टर 2 मिनट्स थोड़ा सा और इंटेंस हुआ, ही अगेन आस्क्ड मी, यू आर कंफर्टेबल? सो देन आई अगेन टुक आउट द ब्रीफ एंड आई आस्क्ड, फिर मैंने थोड़ा सा एटीसी से भी मैंने ना थोड़ा वो इंटेलिजेंस दिखाने के लिए मैंने बोला, सर आई चेक विद द एटीसी व्हाट द लेटेस्ट वेदर अपडेट इज, समवॉट दे आल्सो प्रेडिक्टेड इट टू रिमेन ओके। बट आप जो एक्चुअली, जो मैं वही बोल रही हूँ ना, हर चीज कैन नॉट बी प्रोग्राम्ड कि एक पेपर पे या आपको पहले से पता चल जाए। नाउ ही बीइंग सो सीनियर एंड सो मेच्योर, उन्होंने एंटिसिपेट कर लिया था एडवांस में कि गड़बड़ होने वाला है। एंड मुझे भी ना मोहित थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आ रहा था, बट एक वो ना कि ये मुझसे बहुत एक्सपीरियंस्ड है, इनको ठीक लग रहा है, तो शायद मेरी एंटिसिपेशन गलत है। थोड़ा सा ही आई थिंक वी हैड गॉन अहेड एंड सडनली कुछ होता है ना, द क्लाउड्स टर्निंग ब्लैक एंड बारिश शुरू हो गई। दैट इज द फाइनल टाइम व्हेन ही न्यू, वो उनका कट ऑफ था कि नाउ वी नीड टू टर्न बैक, कि आज ये ठीक लग रहा है। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने नहीं सर, मुझे कंफर्टेबल तो नहीं लग रहा है। ही इमीडिएटली रेज्ड हिज वॉइस लाइक, व्हाई डिडंट यू पाइप अप अर्लियर? तो मेरे पास कोई आंसर नहीं था, मैं ये नहीं बोल सकती थी कि यू आर एक्सपीरियंस, यू आर सो सीनियर। तो एनीवेज वी केम बैक। एक वो इतना सेंस ऑफ एम्बेरसमेंट था, क्योंकि मुझे लग भी रहा था कि ये ठीक नहीं लग रहा, बट एक वो ना कि आई एम सो जूनियर इनको, इफ ही इज कंटिन्यूइंग। सो उन्होंने मुझे ग्राउंड पे आके यही बोला कि अंजलि, in flying, have that much of faith on yourself that when you're feeling any procedure or any weather related thing, you're feeling you're not comfortable or you feel there might be a better option to it, always raise your voice and tell your captain. Of course the final call is always of the captain. Captain हमेशा आपका जो senior pilot होता है वो होता है, but he said maybe human nature उससे कुछ miss out हो रहा है, you take up a call, or if nothing else simply say I am not comfortable sir, please turn back, I am not comfortable. And he said that will be taken well. ज़्यादा ज़्यादा थोड़ी डांट पड़ जाएगी, बट लाइफ इज वे मोर इम्पोर्टेंट। सो आई थिंक दैट लेसन ऑलवेज स्टेड विद मी, जब जब भी कभी भी रियल लाइफ में भी कहीं कुछ सही नहीं लग रहा है, डोंट गेट कैरिड अवे कि और गेट इंटिमिडेटेड कि अरे ये लोग मुझसे बहुत सीनियर हैं या वो है। स्पीक योर हार्ट आउट। एनी आई थिंक मेच्योर पर्सन विल टेक इट इन अ पॉजिटिव वे कि ओके जूनियर है, बट इसमें इतनी कन्विक्शन है कि वो आवाज उठा के बोल रहा है या बोल रही है कि ये मुझे तो नहीं सही लग रहा है, लेट्स चेंज द course of action. So yeah, this is one of the incidents which this teaching which sir gave me has stayed with me till date. ओके, तो बीइंग अ वुमन इन अ लीडरशिप रोल, तो मैनी पीपल थिंक कि यार आपकी जर्नी थोड़ी सी अलग होती होगी, काफ़ी लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन होता है, तो व्हाट challenges do you face as a woman in leadership role? Okay, see, Mohit, here I will say what you're saying is making sense, yes. And in fact, there is no profession which is oblivious. हर जगह कुछ में थोड़ा ज़्यादा है, कुछ में कम, and कुछ में थोड़े exceptions तो वो हर जगह मिल ही जाते हैं. But for me personally, if I talk just professionally, just purely about my profession, so I've always said it very simply कि जब मैं flying करने जाती थी, it's the end of the day, it's a machine. A machine is actually oblivious कि उसको एक इंसान, गधा, घोड़ा, बॉय, गर्ल कौन उड़ा रहा है. It is entirely your skill. It is your coordination, your hand-eye coordination, your reflexes, your knowledge of the aircraft, and how much you have prepared for that particular mission कि आप उतना अच्छा result deliver करते हैं और the machine flies beautifully. So flying particularly, I will say there is absolutely no difference. If other than the flying, the general life, if you say, see minor
डिफरेंसेस आई विल नॉट से कि 100% नहीं है, बिकॉज अभी भी लाइक वी से ना वी आर इवॉल्विंग। एयरफोर्स उस टाइम पे लाइक आई से कि बहुत कम थे। मुझसे कुछ साल पहले वो शुरू ही, एक 10 साल पहले शुरू ही हुआ था। एंड आज की डेट में अगर आप देखो, सो देर आर सो मेनी वुमेन पायलट्स। सो टुडे द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग इज सो मच फार बेटर, फार इक्विप्ड। बट उन दिनों में माइनर चैलेंजेस आते थे, लाइक व्हेन वी वुड गो टू फार फ्लंग एरियाज, जब हम एडवांस एयरफील्ड्स में जाते थे आर्मी के काफी फॉरवर्ड एरियाज में, ईस्ट में हमारे होती थी सॉर्टीज। वहां पे आपके टिपिकली वो एयरपोर्ट वाले सेटअप वेटअप नहीं होते हैं, बिकॉज वो है ही ऑपरेशनल बेसिस, जो कि बस एक टेम्परली क्रिएट किया गया है फॉर योर मिशन टू गो थ्रू, फॉर योर कम्युनिकेशन सॉर्टीज। आपको गुड्स इधर से उधर डिलीवर करने हैं, या सम मेन नीड टू बी पिक्ड अप, या एयर मेंटेनेंस करना है। सो बेसिक चीजें थोड़ी बहुत, येस वी हैड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, बट ओवरऑल आई वुड से my personal experience in Air Force, I've never really felt that kind of, कि कुछ मुझे opportunities कम मिली in that because I am, a woman pilot or anything. In fact, yeah, थोड़ा सा I would say कि एक thought आ जाता है, अगर आप एक पूरी squadron में आप अकेले woman pilot हो, probably people look out for you, especially the seniors. Like in my first unit, I actually had some seniors who would look out. जब रात को 2-2 बजे, 2:30 बजे नाइट फ्लाइंग के बाद पैकिंग पैकअप होता था, यूनिट से, there were a few of them who were decent enough to tell me, though we were all officers, कि just give a missed call or a message that you've gone home, जब हम ड्राइव बैक करके अपने मेस में अपने रूम्स में जाते थे। सो या आई मीन आई डोंट थिंक एनीवेयर ऐसे कोई मेल फीमेल वाला मुझे मुझे पर्सनली डिमार्केशन फील हुआ। एवरीबडी वाज, आई थिंक, ओके विद मी एट लीस्ट। Okay, then now I want to talk about your transition from a military life to a civilian life. जब आप मिसेस वॉकस्टार 2024 आपने जब जीता उसका टाइटल, तब मैं उसके जर्नी के बारे में जानना था कि हाउ वाज दैट फीलिंग, और पूरा एक्सपीरियंस अगर आप बता सकते तो। सो मोहित, दिस वाज अ, आई वुड से, आपका एक लाइफ में कभी भी एक ही सिर्फ पैशन नहीं होता है। मतलब मेरा तो नहीं था, मतलब मैं जैसे बोलती हूँ कि एक ही लाइफ दी है भगवान ने। इट्स नॉट कि आप हर एक लाइफ अलग अलग लाइफ मिलती रहेगी अपने सारे पैशन फुलफिल करने के लिए। सो इट इज वन लाइफ, मेक इट लार्ज, डू एज मच एज यू कैन इन दिस वन लाइफ। So in my college days, I have graduated from Hindu College, Delhi University. In my final year, I was crowned as Miss Hindu, and I was in the Fashion Society Nakshatra. Mein I won a couple of awards there also. And in those days, I had potential. I got a couple of offers, but तब थोड़ी मम्मी डर गई थी कि ये तो अभी तक डिफेंस के लिए प्रिपेयर्ड थी, बिकॉज सी अंडरस्टैंड द माइंडसेट देन। आज हमें एक बहुत अलग विजन है पेजेंट्री का, इट्स अ वेरी मीनिंगफुल प्लेटफॉर्म नाउ। तब पेरेंट्स थोड़े होते थे, दे हैड देयर इनहिबिशंस, एंड आई वाज आल्सो, मेरा ड्रीम शुरू से फौज का ही था, तो सडनली थोड़ा शी गॉट वरिड। सो वो एक पैशन मेरा थोड़ा बैकफुट पे चला गया, बिकॉज प्राइमरली मुझे एयरफोर्स में आना ही था। So final year I came to training, I joined the Air Force Academy. But then now last year when I completed my 14 years and I retired, I had decided this one year I'm not going to pick up a classical 9 to 5 wala. I will transition, but I will take this break wherein I'm going to give all my time to my kids. I will spend that quality time. I will give time to myself, because पूरी जिंदगी हम लगे ही रहते हैं ना, तो अगर आपके फाइनेंसेस सॉर्टेड हैं तो देयर इज नो रश। सो आई वांटेड टू टेक दिस ब्रेक। इसमें क्या हुआ कि इंस्टाग्राम पे देयर मल्टीपल थिंग्स, आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज आल्सो स्टडी वाइज जो मैं कर रही थी। बट बीच बीच में ये आते रहते थे मिसेस इंडिया और ये सब के, आई यूज्ड टू सी। सो आई यूज्ड टू एनरोल and I would give the audition जो online होते हैं आजकल मोस्टली, your introduction, your walk and all these things, and fortunately जितने भी 3-4 प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ जहाँ भी ट्राई किया, हर जगह आई क्लियर द ऑडिशन। एक बहुत अच्छा फील गुड फैक्टर आता था कि वाओ आई क्लियर्ड। एंड जब वो फाइनल मुझे इंसिस्ट करते थे, व्हाई आरंट यू कमिंग जॉइनिंग, आई वुड गिव देम सम, आई वुड एक्चुअली फेक अ पर्सनल रीजन, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड एक्चुअली नहीं थी, बस मुझे अच्छा लग रहा था कि देखो आई एम गेटिंग सेलेक्टेड बट आई एम नॉट गोइंग फॉर इट। But then finally, then a very important chapter happened. I saw this Vogue Star platform. Now, when I came across this platform, there were a lot of things which caught my attention. I spoke to this, I would say, a beautiful and very talented lady called Harry. She looks after their entire, coordination of shows and everything. So, मेरी पहली बात उनसे हुई. She just spoke to me and we connected. But I think in my very first conversation, she understood that I'm a little unsure about it, about the whole field itself, or of my potential. So then she was like, okay, wait, let me get free, we'll talk, and I'll speak to you aram se. I'll first explain what is this actually before you say कि आपको क्या करना है.
So then, Mohit, the vision that she gave me about pageantry, like I said, कि आजकल ये platform बहुत different हो गया है. It is a lot more meaningful. She told me that, just imagine there would be so many women out there. जैसे आप already being a professional and established, आपको इतना doubt आ रहा है अपना profession या अपने profession के बाद एक passion follow करने में. Think of those girls who are maybe younger, who are maybe not really, in an established field. उनके मन में कितने self doubt होते होंगे. So if you are facing it, even they would be facing it. So why not make a, create a journey where they get inspired? It's not relevant कि आप जीत रहे हो नहीं जीत रहे हो, but the fact that आप एक specific profession से होते हुए, you've taken a chance, you've given your dreams a chance, and you're ready to go out there and you're ready to give it a shot and give it a try. That can be so inspiring. And if you win, then of course वो platform बहुत meaningfully आप use करते हो लोगों को inspire करने के लिए, लोगों को एक message देने के लिए that don't let any societal barrier stop you from believing कि अब मुझे ये करना है मैं ये नहीं कर सकती. It's just basically giving that message that women have a freedom to make their choices, and there is no good choice bad choice. It is your choice by the end of the day, and don't be scared of trying something क्योंकि वो आपका फील्ड है नहीं. So पहले तो मुझे एक बहुत मीनिंगफुल उसमें मैसेज मिला. Secondly, I got to know about this platform. This is one platform which is entirely led and run, by women leadership here, including their founder, whom I read about them. She's Kirti Chaudhary. She's a very multi-talented lady who's herself following various professions. She's been in, politics. She's been a successful entrepreneur. Now she's the founder of this platform. तो मुझे वो भी देख के लगा कि इमेजिन वो शी कुड हैव बीन हैप्पी विद दिस बट शी इज गोइंग ऑन एक्सपैंडिंग हर होराइजंस. तो वो बोलते हैं ना चेन रिएक्शन होती है, वन स्ट्रॉन्ग वुमन इंस्पायर्स अनदर वन. मेरे से शायद दो लोग और इंस्पायर हो जाएंगे अब सुन के, अच्छा ये शी कुड डू दिस, हम भी कर लेते हैं. तो दैट बेसिकली कन्विंस्ड मी दैट ओके आई वांट टू गो अहेड विद दिस. बट नेक्स्ट जो फिर आया हर्डल, बिलीविंग इफ आई एम गुड इनफ फॉर इट, इफ आई विल बी एबल टू डू इट, बिकॉज जो ग्रूमिंग मेरी मिलिट्री में थी वो इससे ऑब्वियसली, of course the confidence and everything, but it's more of physical and mental strength that we are talking about when I talk about military life. And here it was, how graceful you're representing your inner and outer beauty here. So वो मुझे थोड़ा सा डाउट आया. तो देयर ऑफ कोर्स देन माय हस्बैंड, जैसे मैं बोलती हूँ हमें सबको लाइफ में एक सपोर्ट, एक वो पॉजिटिव पुश चाहिए होता है. कोई आपको आके बोले मोहित आपको कुछ करना है और आपको लग रहा है यार पता नहीं इतने लोग हैं मैं कर पाऊंगा या नहीं. Could be your family friend, somebody comes and tells you, अरे मोहित I know you, you are so good at it यार, you will do it. मेरा advice ले जा कर and I assure you you'll do wonders. So वो अच्छा लगता है, हर किसी को चाहिए होता है वो लाइफ में. For me, he gave me that push that I know you're going to be very good out there and I see that potential. Please go and give it a shot. At least मन में वो नहीं रहेगा try नहीं किया, नहीं जीते big deal, it's an experience. But you'll feel okay मैंने एक बार try तो कर लिया. So that's the whole journey of how I finally decided to take a chance and go ahead with Vigentry. Actually, there is always a feeling of self doubt when you try to do something new. जो आपने ये बात बोली कि when I started this recording podcast or interviews, तो पहला जो मेरा इंटरव्यू था, आई डोंट नो कि कैसे एडिट करना है, आई डोंट नो एनीथिंग, बट आई जस्ट अपलोडेड एंड आई डोंट नो कि उसका क्या रिस्पॉन्स है, बट मैंने अपलोड कर दिया. एंड उसके बाद देन आई स्टार्टेड लर्निंग. ऑटोमेटिकली वो चीज़ें एक के बाद एक करके होती गई, तो इससे मैं काफ़ी हद तक रिलेट कर पा रहा हूँ. तो नाउ आई वांट टू नो कि व्हाट वाज द बिहाइंड द सीन्स जब आप उस मोमेंट में थे, तब बिहाइंड द सीन्स ऐसे क्या थे आपके दिमाग में कि अगर ये चीज़ हुई तो अब ये होगा, मतलब क्या था दिमाग में, क्या चल रहा था उस टाइम पे जब आप उस टाइम पे रैंप वॉक कर रहे थे? So, Mohit, again, I will say it is very normal and natural to have self doubts at times. Self doubt in terms of, you making those comparisons. Of course, there were so many other women out there whom I felt, yes, were younger. I felt maybe, oh, they're better. And some who were a little more professionally trained as well. सो वो बहुत नेचुरल है, वो हर किसी में हर स्टेज पे आता है कि अरे ये तो मुझसे शायद अच्छे हो सकते हैं, वो हो सकते हैं. बट दैट इज द टाइम, लाइक आई से, यू हैव टू टेल योरसेल्फ दैट देयर आर नो कंपैरिजंस हैपनिंग हियर. यू आर यू. आपकी अपनी जो है क्वालिटीज, योर प्लसेस, योर हाईलाइट्स, वो आप बहुत बार खुद नहीं देख पाते हैं, वो दूसरा इंसान देख रहा है. सो वही, लाइक आई सेड, वो रोल हस्बैंड ऑल द टाइम कंटिन्यूसली गिविंग मी दैट प्रेशराइजिंग और ट्राइंग टू मेक मी फील that no, you're good and you are going to do well out there. But yeah, behind the scenes, थोड़ा self doubt था, थोड़ा सा बीच बीच में there were moments, but I kept telling myself I'm here to experience this. I will give it my best. I'll give it my heart and soul. But this is not something which is going to be like, कि oh life में
क्यों किया जब नहीं जीतना था। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, लेट मी जस्ट एंजॉय द जर्नी। एंड बहुत कुछ पता भी चला कि जो हमें देख के चीज़ें, क्योंकि हर प्रोफेशन में होता है ना, हमें अपने प्रोफेशन के सारे न्यूएंसेस पता होते हैं, कितना हार्ड वर्क हुआ, कितना एफर्ट लगा। बट अब जैसे आप पॉडकास्ट करते हैं, मुझे आज ही मैं फर्स्ट टाइम वो बैठी करने, तो आई रियलाइज इसमें बहुत सारे टेक्निकल पीछे के एस्पेक्ट्स होते हैं जो मुझे नहीं पता थे। नाउ आई एम डूइंग इट विद यू, आई एम अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज ऑल्सो वेरी टाइम कंज्यूमिंग, आपका सेटअप वेटअप करने में ही बहुत टाइम लगता है। वैसे ही मुझे उसका भी बैक स्टेज काफी कुछ पता चला, दैट देर इज such a huge team involved in making, you know, that show come up and look in a certain way, the way it looks later. सो मैं पूरी बुक स्टार की टीम को देख रही थी। एंड या वो मुझे बिल्कुल फौज वाले अपने वो दिन याद आ गए। सुबह 4 बजे शुरू हो जाता था, उनकी पूरी मेकअप आर्टिस्ट की टीम अलग उसमें होती थी, स्ट्रगलिंग इन यू नो विद टाइम लाइन्स, बिकॉज there were so many contestants and they had to get everybody ready। उनकी टेक्निकल टीम, जो उनकी पूरी पीआर टीम, सब अपने अपने कामों में, यू कुड एक्चुअली सी दैट, यू नो, such high levels of professionalism कि सब अपने कामों में they are working day and night to put up a good show। एंड वो जब एक अच्छा शो हो जाता है, उसके बाद जो आप रिलीफ की सांस लेते हैं, सो या आई गॉट टू लर्न अ लॉट कि कितना हार्ड वर्क जाता है इन पेजेंट्स में। ओके, तो डू यू थिंक कि इज देयर एनी डार्क साइड ऑफ फैशन इंडस्ट्री जिसके बारे में हम सब अनअवेयर हैं? I would not say there's any dark side with my experience at least, but yes, there is a very beautiful side to it जो हमें नहीं पता है कि it is not, again I'm saying, जो मुझे भी शायद कुछ time before I personally participated लगता था कि it's all about just wearing a pretty dress and standing on stage. Not at all. There is a whole lot of, you know, grooming that goes, and groomings in terms of everything, starting from your table manners to your etiquettes, to the way you greet somebody, to the way you present yourself, how you introduce yourself, how do you walk। तो अगर आप देखें तो आपकी एक पूरी पर्सनालिटी को ओवरऑल एक ग्रूमिंग मिल रही है, यू नो, व्हेन इवन व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ पेजेंट। सो दैट इज द ब्यूटीफुल साइड आई रियलाइज्ड। एंड द अदर साइड व्हिच आई रियलाइज्ड इज द हार्ड वर्क। लाइक आई सेड, सुबह लिटरली हम 2 बजे भी, अगर उस दिन एक शूट खत्म हुआ है, मतलब एक उसका जो, जैसे पहले दिन आपका स्टेट वाले फाइनल्स चल रहे थे, 2 बजे 2:30 बजे भी सो रहे हैं, अगले दिन 4 बजे। एंड मी बीइंग अ फौजी, हम एग्जैक्ट 4 बजे वहां जाके बैठ गए, नींद आ रही है, कॉफी, सो यू नो, बहुत प्रोफेशनलिज्म इन्वॉल्व है। इट्स नॉट जस्ट कि आप रेस्ट कर रहे हैं दिन भर, आप सिर्फ एक तैयार होके वहां चले गए। And there are people, there are experts who are there who, you know, talk to you, they try to make you feel confident, क्योंकि आप किसी भी, see any girl, you know, पेजेंट में, किसी भी पेजेंट में, whether she's won or not, see her when she's not gone and after she's even participated and she comes back, और कुछ नहीं तो 5% भी अगर आपका कॉन्फिडेंस, आपका, you know, the way you carry yourself has improved, I think it can't really be wrong. But of course, I'll not completely say it's not there, since I've only seen a part of it. मैं सिर्फ अभी तक Bookstars से ही associate हुई हूँ। There would be, and I think girls who are maybe younger in age probably are not very sure about how to make the right decisions। जैसे मैं अब इस स्टेज में थी कि मैं अपना पूरा, जिसे बोलते हैं ना, होमवर्क करके, रिसर्च करके, मैंने पूरी प्रोफाइल, लाइक आई सेड, मैंने पूरा फाउंडर से लेके पूरी टीम के बारे में सब कुछ पढ़ वढ़ के देन आई टुक दिस कॉल कि वाओ, यू नो, दिस इज अ वेरी इंस्पायरिंग प्लेटफॉर्म, मुझे यहाँ जाना है। बट मे बी अ यंग गर्ल हु सो नाइस, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, she might end up making a wrong choice because बहुत fake भी, you know, they float around and we really don't know about it। she will not have this kind of sense। मैं तो अब I'm at this age in life जहाँ मैं हर चीज़ को पहले I would research, I would not take chances। So yeah, there is that potential that you might fall prey। So yeah, please do your research and background check completely before you just enter any such, you know, pageant। Be thorough कि आप कौन से platform पे जा रहे हैं। Just be sure of that। ओके, तो डू यू व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फैशन ऑफ उर्फी जावेद, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी मतलब अजीबोगरीब ड्रेसेस, जो मतलब काफ़ी सारे रील्स वगैरह आते हैं, तो उस फैशन के बारे में आपका क्या कहना है? सी मोहित, आई विल से हर इंसान ना बहुत अलग होता है। बट मेरा बस ये मानना है शुरू से, जब तक आप किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, फॉर मी, आई डोंट ब्रांड पीपल एज बैड और दिस इज गुड और बैड। Personally, if you ask me, I can never imagine myself dressing up like that. That is not my style statement. I dress up in a certain way, but then that is her way of life. That is the way she likes to dress up. तो बोलते हैं ना, to each his own or her own। उनको वो पसंद है, शी इज डूइंग इट, आई थिंक गुड फॉर हर। आई एम नो बडी टू कमेंट। मेरी ड्रेसिंग बहुत लोगों को बोरिंग लग सकती है, बट जस्ट टू बैड, दिस इज माई ड्रेसिंग, आई फील कॉन्फिडेंट इन इट। सो आई थिंक जिसको जो कंफर्टेबल लग रहा है, इट्स ओके टिल द टाइम यू आर नॉट
being a nuisance to somebody else, or you're not, troubling anybody's else space. आप अपनी space में रह के जो भी कर रहे हैं आपको खुशी मिल रही है, I think it's okay. For my sake, it's okay. I'm not a fan per se, but I'm okay. She's doing her thing. She's happy. She's making money out of it. She has big dreams. That's her way of living life. ठीक है, जीने दो. ओके, तो बिफोर रैपिंग द पॉडकास्ट, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप उनको कुछ कहना चाहोगे? Okay, so कहना तो हाँ, I mean, if I could just put out a message, it would just be, see, dreaming is one thing. हम सबके dreams होते हैं. By dreams, I mean, a passion or something that we want to do. But nobody tells you this, that for every dream, you need to work hard towards it. And more than working hard towards it, you need a sense of commitment towards it. अब commitment से मेरा मतलब ये है कि firstly being very sure in your mind that this is what I'm going to be doing. And then surrounding yourself with people who have faith in you. क्योंकि more often than not मेरा dream हो सकता है, मैं hard work भी कर रही हूँ, and मैं अपने आप को I feel I am trying to be committed to my cause, but somebody around me might make me feel I'm not good enough for it, and I might end up giving up that dream midway. So that is what I mean by commitment, कि अगर आप कुछ अपने cause के लिए commitment रखते हैं, do not let anybody pull you down, any societal barrier or any negative thought or process. आप अपने पे believe रखिए, कोई आप में बिलीव करता है, बहुत अच्छी बात है, एक बहुत पॉजिटिव इंस्पिरेशन मिलता है. अनफॉर्चुनेटली यू डोंट हैव एनीबडी इन योर लाइफ हु सपोर्टिंग योर ड्रीम. जस्ट टू बैड. वर्क डबली हार्ड टू प्रूव एवरीबडी अराउंड यू रॉन्ग दैट नो, सी आई एम केपेबल ऑफ इट. ज्यादा से ज्यादा हारोगे, बट एटलीस्ट द जर्नी विल बी वर्थ इट, दैट यू पुट इन योर हार्ट एंड सोल एंड यू ट्राई टू अचीव समथिंग. सो या, जस्ट स्टे पॉजिटिव. गलत मत करो कुछ. स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव. थैंक यू मैम फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। आपसे बात करके काफ़ी मज़ा आया, उम्मीद है आपको भी मज़ा आया होगा। I really enjoyed Mohit, and like I said, मैंने ये अभी just this is probably my second. I have just started doing it because मेरा बस वही thought था इसके पीछे that बोला ना मैंने, एक chain reaction होती है. मैंने किसी को देख के सोचा, अरे वाह, she is doing something, let me also do something meaningful. मुझसे शायद अगर कोई एक दो इंसान को भी लगे, wow, we need to believe in our dreams, we need to pursue our passions with more hard work. उनको देख के शायद और दो लोग, तो यही इसका पर्पस है फाइनली एंड ऑफ द डे, कि थोड़ा सा एक मीनिंगफुल अगर हम पॉजिटिव चेंज ला पाए अपने आसपास में, अपनी सोसाइटी में. सो या, एंड आई थिंक आई एम डूइंग दैट, सो आई एम क्वाइट कंटेंट एंड हैप्पी अबाउट इट.